guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. And in today's video, I'm going to guide you about the complete application process of another public university of Italy, that is University of L'Aquila. So first we'll talk about the University of L'Aquila, its requirements and the programs that are offered by this university, and then I will guide you about if we talk about acceptance rate, so it is around 40% and the minimum CGPA required for admission into this university is 2.5. You don't have to pay any application fee and you don't need any IELTS for admission. So it is a really good opportunity for those who can't afford to pay any application fee or who do not have any certificate of IELTS or TOEFL. So if we talk about the programs that are offered by this university, so the courses that are offered by this university are given below. So the civil engineering course is offered by this university, and then in business administration, mechanical engineering is also offered. There are a wide range of programs available, so you can choose any program that suits your bachelor's degree. So these are the programs that are offered to the international student in this university. Now we'll start our application process. So to start your application process, we will come onto this page. And here they have given us a link about the application. So we'll click on this link. Now we'll translate the page into English. Here we will have to click on Manage Your Application button. After clicking on this button, they will take you to a portal. You will have to register yourself on this portal. So we'll click on the New Registration button. After clicking on the new registration button, here they have asked about some personal details. You will enter all of your details. You have to make sure that the password that you choose are minimum of a 10 character, and the password should have at least one numeric character, means 1, 2, 3, and one special characters among these characters that are given. After writing password, email address, here you will write your first name, surname, then you will choose your gender, then you will write your date of birth, and here you will choose no, since we don't have an Italian citizenship. Here you will leave this text ID code section empty, and then here you will write the country where you were born, and here you can write your phone number, and after writing your phone number you will check these options, and then you will click on the new registration button. So after clicking on the register button, you will receive a link in your inbox, and after clicking on that link, you will successfully register on this portal. If you have already applied to the University of Modena, so then you won't have to register yourself again on this portal, since you will already have your account registered on this portal. So you should only log in onto this portal if you have already applied to the University of Modena. And if you are a new user, then you have to register yourself. तो फर्स्ट आपने जो है अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर करना है, लेकिन अगर आपने मोडेना यूनिवर्सिटी पे ख़ुद को जो है मोडेना यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो उसमें भी आपको इसी पोर्टल पे पहले रजिस्टर होना पड़ता है। लेकिन अगर आप जो है पहले इस पोर्टल पर रजिस्टर हो तो फिर आपको दोबारा इस पोर्टल पर रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, और वो होगी भी नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पोर्टल पर रजिस्टर होंगे। इस पोर्टल पर जब आप रजिस्टर करोगे पहली दफ़ा तो आपको लिंक रिसीव होगा, वहाँ से जो है ईमेल पे आपने जो है लिंक अपना एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर हो चुके हो, इससे पहले जो है आप यूनिवर्सिटी ऑफ मोडेना के लिए अप्लाई कर चुके हो, तो फिर आपको जो है दोबारा इस पोर्टल पे रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट लॉगिन करोगे और आपके पास जो है ये स्क्रीन शो हो जाएगी। एंड देन ऑन दिस स्क्रीन यू विल सर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लक्वेला, देन यू विल सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी ऑफ लक्वेला। तो इसका नेम यहाँ पे जो है इटालियन में लिखा है, आप जो है इसको यहाँ से जो है लोगो भी देख के या यहाँ पे ये लक्वेला पढ़ के जो है इसको यहाँ से सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, तो फिर आपने इसको दोबारा इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आप जो है पेज पे राइट क्लिक करें और फिर ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे प्रेस करें, तो आपका जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ये पेज जो है वो खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा गूगल की साइट से। फिर यहाँ पे जो है आपने एडमिशन के लिए जो है वो अपना रेलेवेंट ऑप्शन जो है यहाँ से चूज़ करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, कॉल फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विद फॉरेन क्वालिफिकेशन एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन इंटरनेशनल मास्टर्स डिग्री, तो हम जो है इसी को ही यहाँ से चूज़ करेंगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे मैनेज योर एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, पे जो है आपके पास ये पेज आएगा। तो यहाँ पे जो है आपने किसी भी बटन पे, फॉर एग्जांपल हम साइन इन सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एप्लीकेशन आ जाएगा कि आप जो है पहले एप्लीकेशन को फिल करें और फिर साइन इन सबमिट पे आप जो है क्लिक करें।
एप्लीकेशन पे जो है हमारे पास इसकी सारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह यहाँ पे आ जाएगी। तो आपने जो है वन बाय वन सारी जो है वो फिल करनी है। तो यहाँ पे आप जो है पहले स्टडी ट्रैक्स पे क्लिक करोगे। स्टडी ट्रैक्स पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास जो है ऑप्शंस है कि आप इनमें से किस डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप किन प्रोग्राम में मास्टर्स अपना करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आप फॉर एग्जांपल जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम सेलेक्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा जो कि होगा आपके पर्सनल डिटेल्स का। तो आपने जो है इसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे आपकी डिटेल लिखी हुई होगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की थी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके पास सिटीजनशिप है जिस कंट्री की, तो वो यहाँ पे आप चूज़ कर लो। तो आप यहाँ पे अपनी कंट्री की सिटीजनशिप वाली चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे आपसे जो है आपका परमानेंट एड्रेस मांगा गया है। तो यहाँ पे जो है आप अपना रेजिडेंस का एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डाल दोगे। सबसे पहले जो है आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करोगे। कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आप जो है यहाँ पे कंट्री वाली जगह पे क्लिक करोगे और लिस्ट से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे आप जो है अपना सिटी का नेम और टाउन का नाम जो है यहाँ पे लिख लोगे। फिर यहाँ पे जो है आप अपना एड्रेस लिखोगे, स्ट्रीट का एड्रेस, और फिर यहाँ पे सामने जो है आप हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे आपने जो है जिप कोड लिख लेना है। ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपके विलेज या सिटी का कौन सा जिप कोड है। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस फॉर एनी कम्युनिकेशन मांगा गया है। तो अगर आपका जो है परमानेंट एड्रेस जो है वो इस एड्रेस से डिफरेंट है तो यहाँ पे आप जो है वो डाल दोगे। या फिर अगर आपका सेम ही एड्रेस है परमानेंट एड्रेस से तो फिर आप इसको जो है वो एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। फिर आप आओगे नीचे, तो नीचे आपसे जो है यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगा गया है। तो आप यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर अपना लिख लोगे। फ़ोन नंबर लिखने के बाद जो है नीचे आपसे पूछा गया है कि अगर आप डिसेबल स्टूडेंट हो तो यहाँ पे यस क्लिक करो। अगर आप जो है स्पेशल नीड वाले या डिसेबल स्टूडेंट नहीं हो, आप जो है हेल्दी हो, बिल्कुल ठीक हो, तो फिर आप यहाँ पे नो चूज़ करो। वो चूज़ करने के बाद आप यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। फिर आप जब नेक्स्ट प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है कि आपके पास डिग्री बैचलर्स की है जब आप जो है इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इस एडमिशन के लिए बैचलर्स की डिग्री है। तो आप जो है यहाँ से यस प्रेस करोगे। यस प्रेस करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपनी डिग्री की सारी डिटेल्स डालोगे। सबसे पहले आप अपनी डिग्री का नाम लिखोगे, जो भी आपकी डिग्री का नाम होगा जो आपके डिग्री के ऊपर जो है वो लिखा होगा तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। आप अपनी डिग्री से पढ़ के जो है अपना डिग्री का फुल नेम जो है वो यहाँ पे लिख लोगे। मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ भी रैंडम भी लिख रहा हूँ, आपने जो है फुल फॉर्म में पूरा नाम ही लिखना है। फिर यहाँ पे जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखोगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसका फुल नेम जो है आप यहाँ पे जो है लिख लोगे। ये मैं आपको समझाने के लिए वैसे ही फिल कर रहा हूँ, आपने फुल नेम ही लिखना है। फिर यहाँ पे जो है आप यूनिवर्सिटी जिस सिटी में है उस जगह का जो है आप नाम लिख लोगे, जिस भी सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है। वो लिखने के बाद आप यूनिवर्सिटी की कंट्री चूज़ करोगे, जिस भी कंट्री में आपकी यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद आप यहाँ पे लीगल ड्यूरेशन में 4 ईयर्स लिखोगे। चूँकि पाकिस्तान में बैचलर्स की डिग्री 4 ईयर्स ही होती है तो हम यहाँ पे 4 ईयर्स लिखेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे एनरोलमेंट डेट लिखोगे। एनरोलमेंट डेट में आप वो डेट लिखोगे जब आपने जो है अपनी डिग्री स्टार्ट करी। यहाँ पे ग्रेजुएशन डेट लिख लोगे, जिस भी ईयर को आपने जो है अपनी डिग्री ग्रेजुएट करी। नीचे आपने जो है बैचलर सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल अगर है तो आप जो है यहाँ पे उसको अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद जो है आप ऊपर जाओगे दोबारा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके पास इंग्लिश की नॉलेज है कि नहीं। तो यहाँ पे आपने चेक करना है इसको। ये चेक करने के बाद आप आओगे नीचे। नीचे आने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके दूसरे सेक्शन पे चले जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन पे आपसे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे जो है आप इसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद जो है आप ये सारे ऑप्शन जो है वो चेक कर दोगे। ये सारे डिक्लेरेशंस हैं। ये डिक्लेरेशंस चेक करने के बाद आप नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे आपसे जो है आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट मांगा गया है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट सेलेक्ट कर लो यहाँ से। अगर आईडी कार्ड है तो आईडी सेलेक्ट कर लो, आईडी कार्ड। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पासपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ। पासपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे डॉक्यूमेंट नंबर मांगा गया है। तो इसमें आप जो है अपने पासपोर्ट का नंबर लिख लोगे। पासपोर्ट का नंबर लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे इशू डेट लिखोगे, मतलब जिस डेट को आपका पासपोर्ट बना वो लिख लोगे। और फिर आप यहाँ पे जो है एक्सपायरी डेट लिखोगे कि जिस डेट को आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा। ये डेट्स जो है ये आपके पासपोर्ट पे या आईडी कार्ड पे जो है वो मेंशन होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो तो उस पर ये डेट्स मेंशन होंगे, आप वहाँ से जो है लिख लोगे। फिर प्लेस ऑफ इशू में आप जो है लिख लोगे वो जगह जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है। फिर इशूइंग अथॉरिटी में जो है आपका पासपोर्ट जिस अथॉरिटी से इशू हुआ है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर नादरा से आपने आईडी कार्ड लिया हुआ है तो आप यहाँ पे नादरा लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपलोड करोगे अपना आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट किया है। वो अपलोड करने के बाद नीचे आपसे जो है वो सीवी मांगी गई है। तो यहाँ पे आप जो है चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड कर दोगे।
सीवी अपलोड करने के बाद आपसे यहाँ पे जो है इंग्लिश सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट में देख सकते हो कि एजुकेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश एटलीस्ट B2 लेवल सर्टिफिकेट इफ़ यू स्टडीड इन इंग्लिश फॉर 1 or more years ड्यूरिंग योर हाई स्कूल और बैचलर्स डिग्री, और इफ़ यू आर मदर टंग इंग्लिश स्पीकर यू कैन सिंपली डिक्लेयर इट अंडर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप जो है यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में ही पढ़े हो तो आपको फिर कोई भी आइल्स या टॉफल की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हमारी बुक्स सारी इंग्लिश में ही होती है और हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो हमें जो है कोई आइल्स या टॉफल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है हम सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लेंगे कि हम जो है इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। वो ऑप्शन चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे ये चेक करोगे नीचे, फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपसे जो है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड मांगा गया है। तो यहाँ पे जो है आप अपनी डिग्री के सारे ट्रांसक्रिप्ट जो है यहाँ पे अपलोड कर दोगे। ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के बाद आप आओगे नीचे, तो नीचे आप जो है अपना मोटिवेशन लेटर लिख के वो PDF में कन्वर्ट करोगे और फिर आप यहाँ पे उसको अपलोड कर दोगे। मोटिवेशन लेटर अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे कोर्स डिस्क्रिप्शन अपलोड करोगे। तो यहाँ पे लोगों ने लिखा है अ फाइल containing a description of attended course units that you consider relevant for your application, and this is not document usually issued by universities. Applicant have to fill in such a file by themselves as self certification. Use the template provided in the announcement. तो आप जो है इस लिंक पे क्लिक करोगे इसके लिए, कोर्स डिस्क्रिप्शन के लिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक टेम्पलेट शो होगा। वो टेम्पलेट जो है वो आपने ओपन करना है। उसमें जो है आपसे पूछा गया होगा कि आपने जो है कौन कोर्सेज जो है वो अटेंड किए हैं और आपका ग्रेडिंग सिस्टम क्या था। तो आप वो सारा जो है इसमें लिख लोगे। इसमें आप आवर्स भी लिखोगे, ग्रेड्स भी लिखोगे। वो सारा लिख के आप नीचे अपने सिग्नेचर करोगे। सिग्नेचर करने के बाद जो है आप उसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे। ये बेसिकली आप अपनी DNC से भी लिख सकते हो, उसमें आपकी सारी डिटेल जो है वो मेंशन होगी। इसमें आप जो है वही कोर्सेज लिख सकते हो जो आपके मास्टर्स के लिए रेलिवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आप जो है कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई, ये मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो अगर आपने BS कंप्यूटर साइंस किया है तो उसमें साइबर सिक्योरिटी के लिए जौन से भी सब्जेक्ट वैसे नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं तो वो सारे जो है आपने इसमें मेंशन करने हैं। उसमें जो है आपके पास कोर्स का एक कॉलम गिवन होगा, ग्रेड का भी एक कॉलम गिवन होगा। तो वो सारा जो है आप अपने DMC से जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे अगर कोई और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स है, कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स है, तो वो आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है सेव एंड बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे। अब आप आ जाओगे वापस अपने डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे वापस आने के बाद आप यहाँ पे साइन इन सबमिट पे क्लिक करोगे। साइन एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा जो भी आपने फिल करा है। तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगा, जो भी आपने फिल किया है वो सारे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। वो सारे फिल करने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे जो है इस ग्रीन बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके पास लिखा भी आ रहा है कि आपका PDF फाइल जनरेट हो रहा है। तो इस एप्लीकेशन का PDF फाइल जनरेट हो जाएगा और उसमें ये सारी डिटेल्स आपके पास गिवन होगी और ऑलरेडी फिल्ड होगी जैसे कि आपने फिल करी है। वो फिल करने के बाद जो है आप आओगे इस पेज पे। इस पेज पे अब यहाँ पे जो है आपके पास हैंड रिटन सिग्नेचर का ऑप्शन गिवन है। तो आप इस ग्रीन बटन पे दोबारा क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आपके पास एक और स्क्रीन आएगी, उसमें आप यहाँ पे डाउनलोड PDF पे प्रेस करोगे तो आपके पास आपकी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आप उसको प्रिंट करोगे। प्रिंट करने के बाद जो है आप उसके उसमें आपके पास सिग्नेचर अपना करना होगा। अपना सिग्नेचर करने के बाद जो है आप उसको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे। उसको सिग्नेचर करने के बाद आपने उसको स्कैन करना है। स्कैन करके आप उसको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके फिर यहाँ पे नीचे सबमिट दी एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा एक इजी प्रोसीजर। इस यूनिवर्सिटी में आप मस्ट अप्लाई करें क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इसमें ज़्यादा है। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर जो है वो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम जो है इसी तरह आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ भी बनाते रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।